Good evening to all of you. You all are welcome. We are going to discuss today governance. That is our the first class, and let us start it, and we will try to enjoy. Okay. So our topic is governance. Have you studied about the syllabus of UPSC, especially GS paper second, the mains? This is the main topic, and the entire syllabus of UPSC circulate around the governance. This is the governance, okay, and it moves around the governance, moves. So whatever you have to study, whatever, it doesn't matter your optional is Sanskrit or mathematics, that should be implemented in the context of governance. You should keep it in your mind. Are you getting? So everything should be correlated with the governance. So before starting the governance, there are some terminology will try to come and again. So let us clear first of all, okay? So the terminology is state. And you already acquainted to the definition of the state, I think. Everybody. Anyone please? So first of all, try to understand a state. There are 4 grounds to be called a state. 4 grounds. 4 grounds. Number 1, fixed land. Number 2, population. Number 3, government. And number 4, sovereign. These are the grounds to be called a state. Here a state means India. India is a state, and India has been formed by following. It means first of all, to be called in India, there is need of fixed land. Any problem? Population, government and sovereign. If any one is missed, removed, the state will not be properly followed the definitions on international level. Clearly? Here the third pillar of the state, that is known as a government. Government is an institution. Government is an institution. Government is an institution to fulfill the objectives of the state. Aim to fulfill the objectives of the state. To fulfill the objectives of the state. गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट किसका नाम है? कोई पूछे गवर्नमेंट किसको कहते हैं, क्या जवाब होगा आपका? इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट. और उस इंस्टीट्यूशन का एम क्या है? स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना. स्टेट कौन है? इंडिया है. आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर इस पूरे बॉडीज को अगर स्टेट मान लें तो इसमें गवर्नमेंट कौन सा पार्ट होगा? कौन सा पार्ट होगा? ये गवर्नमेंट माइंड होगा. यही है डिसीजन मेकिंग. पूरे गवर्नेंस में जो मेन एक्टर होगा ना, मेन एक्टर, वो यही गवर्नमेंट होगी. आर गेटिंग माय पॉइंट? जैसे गवर्नेंस नाम की एक मूवी है, उसमें एक्टर कौन होगा? जैसे पठान मूवी में है ना एक्टर सलमान, ये शाहरुख खान है, इसमें कौन होगा? पीएम नहीं, गवर्नमेंट.
PM is a part of government. PM is not a government. Are you getting my point or not? Murmu madam is not government. She is a part of government. Okay? चलें आगे हम लोग. Good. अब हम लोग जरा सा गवर्नेंस को देखते हैं. हेडिंग ये हो गया आपको जनरल डेफिनेशन. जनरल डेफिनेशन आंसर लिखने के लिए आपको कई कोडिंग करना पड़ेगा यूपीएससी में, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी और एक जनरल. तब देखना आंसर में कितना परफेक्शन आएगा. अगर मैं बोल रहा हूँ आंसर में तो वो लिख रहा हूँ. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अभी आपको पता नहीं होगा, अभी हम यहाँ से लगभग 1 महीने से अपसेंट हैं, क्लास नहीं ले रहे. आज पहली क्लास है इस साल की. आर यू गेटिंग? जानते हैं क्यों? इससे पहले यूपीएससी का मेंस था, उसमें कुछ ज़रूरी नहीं कि आपके फेस में से कोई एक हो. बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लियरली. अभी और भी दूसरा सेक्शंस दूसरे कहीं स्टेट पीसीएस में वहाँ पे जो सिलेक्शन होता है उसका एक अलग एक बैच था, उसको कंप्लीट कराना था. ओके, अब नेक्स्ट जो बारी है ना आपकी है, तो थोड़ा सा देखना कि कैसे कैसे चीज़ों को करेंगे. तो हम जनरल डेफिनेशंस को ज़रा सा देखते हैं. मैं पॉलिटी की क्लास में जनरल डेफिनेशन अक्सर लिखवाता हूँ, मुझे लगता है याद होगा आप लोगों को. क्या है जी, ज़रा बताइए तो आप. पूरा एकदम याद है, वेरी गुड. जरा सा लिख लेते हैं हम. वट एवर गवर्नमेंट, दिस इज द गवर्नमेंट डज according to law is called governance, in which number 1 formation of policies, number 2 implementation of policies, number 3 decision making are included. Okay, if you are unable to read any words, you can ask me. Whatever government does, इसका मतलब होता है सरकार जो कुछ भी करना चाहती है. Whatever government does, मनमाना कर सकती है सरकार, ऐसा लगता है यहाँ से, तो क्यों नहीं करेगी? ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी गवर्नमेंट जो भी काम करेगी किसके अकॉर्डिंग करेगी? लॉ के अकॉर्डिंग करेगी. और गवर्नमेंट के लिए लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है. आखिर गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का 3 ही काम है गवर्नेंस में. नंबर 1 फॉर्मेशन करना, नंबर 2 और तीसरा डिसीजन मेकिंग करना. ये सारा टर्मोलॉजी बार बार आएगा, चाहे कोई भी डिफिनेशन लिखें, चाहे वर्ल्ड बैंक का या फिर हम यूएनडीपी का या कोई जनरल डिफिनेशन लिखें, सभी में यही तीनों टर्मोलॉजी आएगा. पूरी की पूरी 10 डेज की क्लास इसी 3 थीम पर चलेगी. ओके, अगर गवर्नमेंट गुड पॉलिसीज का फॉर्मेशन करे और गुड तरीके से क्या कर दे, उसको इम्प्लीमेंट कर दे और गुड डिसीजन ले, तो इसी को क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस. सबसे पहले तो गवर्नेंस पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे हम? गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे. और गुड गवर्नेंस जब पढ़ेंगे ना, तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो इसी 3 पॉइंट्स पे, और कौन कौन से पॉइंट ऐड होगा ना, वो पहले चर्चा कर लेते हैं. ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, आप गुड कर लो. ठीक है,
दिस इज द डिस्टर्ब एलिमेंट। पहले कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। ओके देखिए, जो क्लास में लिखवाएंगे आपको वो दैट विल बी एनफ। एनफ इज एनफ, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इससे बाहर अगर आ गया तो आप फ़ोन नंबर लेके जाना और जो दिल करे वो कह लेना। बात समझ में नहीं आती है। कोई प्रिंट मटेरियल नहीं और कोई दूसरा मटेरियल नहीं। पढ़ना है प्रिंट वगैरह तो किसी दूसरी चीज़ के लिए पढ़ना। पूरा का पूरा एस्से में आपको हेल्प करेगा ये, है ना। चलिए ज़रा सा देखते हैं वन बाय वन। इसके बाद हम लोग आएंगे एक डिफिनेशन पे। वर्ल्ड बैंक का डिफिनेशन क्या वो देखेंगे ज़रा। पहले ज़रा देख लो, पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन गुड तरीके से। आखिर इतना आसान नहीं है कि अच्छी पॉलिसी बन जाए। अच्छी पॉलिसी की पहचान क्या है? कोई पूछे कि अच्छी पॉलिसी क्या है, किसी भी गवर्नमेंट से पूछिए कि आपका गवर्नेंस कैसा चल रहा है, हाउ इज योर गवर्नेंस। एवरी गवर्नमेंट विल क्लेम दैट आवर गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन गुड गवर्नेंस। द सबका साथ सबका विकास is the theme of good governance. Do you agree or not? But when you ask this same question from the Gehlot government who is running in Rajasthan, he will also refer that our government is completely based on good governance, but not any other party can run these kinds of government. Do you agree or not? ऐसा ही कहती है ना सारी सरकार। आप योगी जी से पूछिए वो क्या कहेंगे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप लोग बिहार से कोई हैं? नहीं है ना। बिहार में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। ही इज ओनली चीफ मिनिस्टर इन इंडिया हु इज कॉल्ड द सुशासन बाबू। इट मीन्स इन हिंदी दैट इज द ट्रांसलेटेड फॉर्म इन इंग्लिश, यानी गुड गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने वाला। किसी और को नहीं मिला है ये पोस्ट, उन्हीं को मिला है। ऐसा क्यों? इसके पहले ये मान्यता थी कि बिहार में गवर्नेंस थी ही नहीं, हमने क्या कर दिया, उसको एस्टैब्लिश कर दिया बेहतरीन तरीके से, इसलिए क्या कहलाया उन्होंने? सुशासन बाबू। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा सा टेस्ट करेंगे हम। मान लो कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और गवर्नमेंट कह रही है कि ये पॉलिसी क्या है? गुड है। ये पॉलिसी गुड है और ये पॉलिसी किसके लिए है? तो ये है यूथ के लिए। किसके लिए? यूथ के लिए। मान लो कि गवर्नमेंट ने कही कि हम अग्निपथ लेकर के आए और अग्निपथ में सारे यूथ हैप्पी चले जाएंगे उसमें और फिर 4 साल अपना काम करके वापस आ जाएंगे रिटायर होके, उसके बाद शादी विवाह करेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट। कोई दिक्कत? लेकिन आप युवाओं को पसंद आया ये? नहीं। तो उन्होंने क्या किया? ट्रेन को ही जला दिया। तो इसका ये मतलब होता है कि गुड पॉलिसीज़ की पहचान तभी है जब उसका कोई अगेंस्ट में जा कर के ना काम करना शुरू कर दे, एजिटेशन ना करे लोग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर एजिटेशन कर रहा है जिसके लिए बनाया गया है और वही एजिटेशन करने लगे तो आप समझ जाओ कि गुड गवर्नेंस फेल हो चुका है। गांधी जी चलाते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नाम सुना है? क्यों? ताकि ब्रिटिश की पॉलिसी फेल हो जाए। तो किसी भी गवर्नमेंट का अगर पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर लोग आ जाए रोड पे तो आप समझ जाओ कि गुड गवर्नेंस क्या हो गया? फेल हो गया। इसी तरह से फार्मर्स लॉ बने। फार्मर्स के लिए क्या बनाया गया? फार्म लॉ बनाया गया। तो फार्मर्स को पसंद नहीं आया तो फार्मर्स कहाँ का चले आए? रोड पर चला है, वापस करना पड़ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? गुड गवर्नेंस फेल हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं मान लेना है कि हाँ मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी आप आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो देखो, इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉलिसी बनाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक एनी पॉलिसी, जिसके लिए बनाना चाह रहे हो ना, पहले उनसे पूछो आप। जैसे मान लो कि आपके फादर आपका कहीं रिश्ता तय करते हैं, अब बिना आपसे पूछे तय कर दे, और इनके फादर कहीं रिश्ता तय करते हैं, इनसे पहले पूछते हैं। अब बताओ कौन फादर अच्छे हुए? जो पूछे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
इसका मतलब होता है पार्टिसिपेशन, यानी जो काम करने जा रहे हो ना उसमें पार्टिसिपेट कराओ जिनके लिए करने जा रहे हो। यूपीएससी का यही है क्वेश्चन 2021 का कि डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिसीज फॉर्मेशन, डू यू थिंक इट विल स्ट्रेंथन द गुड गवर्नेंस, डिस्कस इट विद एग्जाम्पल। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी जिसके लिए भी गवर्नमेंट जो भी काम करना चाहती पहले उससे पूछे, यही यूपीएससी पूछ रही है क्वेश्चन में। गुड गवर्नेंस की पहली पहचान क्या है? पार्टिसिपेशन। तो आगे जो हम लोग लिखवाएंगे ना गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या चाहिए, तो पीपल पार्टिसिपेशन एक टर्मोलॉजी आएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा इसी टर्मोलॉजी पर। मेरी बात समझ में आ गई? यानी अभी इसको लिखना नहीं है, बस माइंड में सेट करना है। जो टेलर है, ये मूवी की टेलर चल रहा है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 2। अब जरा सा इसको हम ये करते हैं जरा, देखिए नाम आपने सुना है इसका, मीडिया का। देखिए अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू डू समथिंग, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिलीवर्ड टू द पीपल, ओके, एंड ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल मस्ट बी एड्रेस टू द गवर्नमेंट। क्लियरली यही तो काम है मीडिया का। अब गवर्नमेंट का इरादा अगर गलत हो जाए और मीडिया को खरीद ले, जैसे अभी गोदी मीडिया का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बताओ मीडिया इन्फॉर्मेशन देगी आपको? नहीं देगी। और मीडिया को क्या कहा जाता है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यही कहा जाता है। तो अगर मीडिया की आवाज़ ही दबा दी जाए तो सरकार काम क्या करना चाहती है रियल वे में पीपल को पता चलेगा? जनता को नहीं पता चलेगा। इससे होगा क्या? पीपल को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। और गुड गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? पीपल को फ़ायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना? फ़ायदा। तो रोल ऑफ मीडिया मस्ट बी इन पॉजिटिव वे। 2019 का क्वेश्चन है कि डिस्कस द पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया इन पॉलिसीज फॉर्मेशन, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी फॉर द गुड गवर्नेंस, डिस्कस इट विद एग्जाम्पल्स। पूरे क्वेश्चंस जानते हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी पर आएगा आपका और बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है। बुक्स तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ लिया बुक तो समझो आंसर खराब हो जाएगा, और नहीं पढ़ा तो परफेक्ट आंसर लिखा जाएगा। हंस रहे हैं पीछे। देखो मीडिया हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब जरा सा देखिए कि पॉलिसीज़ बनाने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने वाला भी तो सही होना चाहिए, मेकर। पॉलिसी मेकर कौन है? गवर्नमेंट में भी कई ऑर्गन्स हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कौन है? सपोज दैट लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में आप जानते ही होंगे कि पार्लियामेंट हमारा सबसे टॉप पे है, एनी प्रॉब्लम? और इस पार्लियामेंट में सबसे एक है लोकसभा, दूसरा क्या है? और राज्यसभा, तीसरा प्रेसिडेंट। अब ये बताओ कि लोकसभा का इलेक्शन होता है और सारे करप्ट चले जाए यहीं, तो एक करप्ट एक अच्छी पॉलिसी बना सकता है? नहीं। तो देखो ARC रिपोर्ट पढ़ोगे आप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पढ़ोगे ना, सेकेंड ARC, फर्स्ट ARC, इस सब रिपोर्ट में आया है कि 40% हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन पर रेप चार्जेज है। कितने हैं? 40% पर रेप चार्ज है, वो भी प्रूव्ड है कोर्ट में, एविडेंस पुलिस प्रोवाइड कराई है। अब आप बताइए कि ये वीमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ये पॉलिसी बनाने वाले हैं, तो आपको लगता है वो पॉलिसी अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी। अगर करप्शन को रिमूव करना है, अच्छी पॉलिसी मानी जाएगी कि नहीं? अगर करप्शन रिमूव करने के लिए लाया जाए कोई पॉलिसी, अच्छी मानोगे कि नहीं मानोगे? लेकिन ला रहा है वही करप्ट है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी पॉलिसी आएगी, वो नहीं आएगी। तो यूपीएससी देखो क्या पूछ रही है कि देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स रेफर्स दैट आवर द रिप्रेजेंटेटिव आर involved in the corruption, but they are involved also in policy formation for removing the corruption. Comment it. क्वेश्चन समझ में आया? रिपोर्ट कई बता रहा है कि करप्शन जो है काफ़ी इंडिया में है और उसको रिमूव करने के लिए उसमें जो इन्वॉल्व है करप्शन में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है,
और वही रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व है पॉलिसी बनाने में जो करप्शन को रिमूव करेगा। आपको सुनकर के एक बात हैरानी होगी कि हमारे पॉलिटिशियन जितने हैं वो किसी भी एक बात पे एक नहीं होते, सिवाय एक पर। अगर उनके इंटरेस्ट को हार्म होगा ना तो सब एक हो जाएंगे। देखो उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, सब लोग डिवाइड थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चाहे देश कहीं चला जाए, लेकिन एक ऐसी घटना है देश में, जब ये हुआ था तनख्वाह बढ़ाने की बात आई थी सारे पार्लियामेंटेरियन का, तो पता है सब सूर में सूर मिला लिए, हाँ बढ़ना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे दे आर नेवर मेड द कंसेंसस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ऑन एनी इशू, बट व्हेन दे विल ट्राई टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट दे विल बी कंप्लीटली स्टैंड टुगेदर। आर यू गेटिंग? ये आपको जो रिपोर्ट है ना, वहीं से यूपीएससी डायरेक्टली एक क्वेश्चंस को सेट कर देगी और वहीं से आपको लिखना होगा, और ये सब अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए यहाँ लेजिस्लेचर हो गया, पीपल पार्टिसिपेशन हो गया। आपने अन्ना हजारे का नाम सुना है? सिविल सोसाइटी, ये सब वर्ड आएगा आप आगे चल करके, हम लोग देखेंगे कि ये सब है क्या आगे। सिविल सोसाइटी का मतलब होता है, आप इसको ऐसे जानिए कि ये है इंडिया के लोग, पीपल ऑफ इंडिया है, और एक्सक्लूड कर दो जो डिफेंस में है, और इधर उनको एक्सक्लूड कर दो जो अनसाउंड माइंड है और चिल्ड्रेन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और बाकी के जितने बचे वो सब के सब क्या है? पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। जैसे यू कोई एनजीओ वगैरह है, ये सब क्या है? सिविल सोसाइटी के पार्ट है। अन्ना हजारे ऑल्सो कम्स in this category या this category या this category? Okay, he has played the significant role to bring the Lokpal bill in the parliament for curbing the corruption. Do you agree or not? याद है एक बार उन्होंने आंदोलन किया था, आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे, देखा था आंदोलन को। उन्होंने बहुत मेजर, उन्हीं का तो, उसी आंदोलन का तो औलाद है ये, कौन? केजरीवाल। और पता है उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। आज भी कई ऐसे जो है ना पॉलिसीज इंडिया में है, जैसे नाज फाउंडेशन का नाम सुना है? नाज फाउंडेशन जो लेस्बियन के लिए काम करता है, थर्ड जेंडर के लिए, उनके राइट्स को आप देखोगे एग्ज़ाम में फॉर्म भरोगे ना तो उसमें आएगा आप मेल हैं या फीमेल हैं या तीसरे नंबर पे हैं, ऐसा आता है ना। तो अब पहले लोग तीसरे नंबर वाले कहाँ भरे, तो उनको राइट दिया गया, तीसरा कॉलम भी आता है और उसमें टिक करना होता है क्लियरली। ये पता है कैसे पॉसिबल हुआ? नाज फाउंडेशन ने गवर्नमेंट के साथ मिल कर के काम किया और उनके लिए जो पॉलिसी जो फॉर्मेशन हुई ना, उन्होंने पूरा फॉर्मेट तैयार करके दिया था। तो यूपीएससी देखो क्या पूछ रही है 2020 में, क्वेश्चन देखना आप, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज इन पॉलिसीज फॉर्मेशन, डू यू थिंक इट इज द नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग द गुड गवर्नेंस, डिस्कस इट विद एग्जाम्पल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी एक टर्मिनोलॉजी आएगा तो उस पर एक क्वेश्चन है और उसके बस रोल को देखना है, और यही अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज कितना भी अच्छा हो, इम्प्लीमेंट नहीं तो गुड गवर्नेंस क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए? देखो गुड गवर्नेंस अगर पढ़ना है ना तो सबसे अच्छा है इसका एक ही तरीका, आप अपने घर के माहौल को देखो, और मेन एक्टर पापा हैं या मेन एक्ट्रेस कौन है? मम्मी है। पूरी मूवी घर की यही दोनों की इर्द गिर्द चलती रहती है, और हम लोग क्या हैं? एक तरह से वर्कर है घर पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हेल्प करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, मान लो कि पापा ने कह दिया कि ये काम करना है, जैसे उन्होंने कहा जाओ आईएएस बनो दिल्ली में, और हम आ गए और यहाँ पढ़ाई के बजाय पीवीआर में बैठे हुए, तो कैसा लगेगा? वो एम अचीव कर पाएंगे? नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए क्या क्या चाहिए? देखो, नंबर 1,
टेक्नोलॉजी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये गवर्नमेंट की बहुत खूबसूरत पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है, गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कह रही है, और पता चला हमारा सैटेलाइट ही काम नहीं करता है, तो बताओ अचीव कर पाएंगे? ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में जहाँ जहाँ स्टूडेंट इंडिया का है सभी को इक्वली और इक्वल टाइम में, सेम टाइम में प्रोवाइड करना है, और टेक्नोलॉजी है ही नहीं लोगों के पास, तो पॉसिबल है नहीं। यूपीएससी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रही है 2020 में, डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज इन पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन। आर यू गेटिंग? डू यू थिंक मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर द गुड गवर्नेंस? अब आप बताओ सही है या गलत है। इस क्वेश्चंस को कहीं बुक में मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? अब पता चला कि गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी ला करके इम्प्लीमेंट कर दिया, पर टेक्नोलॉजी चलाने नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि रूरल इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहता है? रूरल इंडिया में कितना % पॉपुलेशन है रूरल इंडिया में? कितना? देखो 31.7% पॉपुलेशन अर्बन में, आर गेटिंग, और बाकी जो बचे वो कहाँ हैं? रूरल इंडिया में। और रूरल इंडिया में जो पॉपुलेशन है उनके पास टेक्नोलॉजी ला करके दे दो, अब उनको पता ही नहीं कैसे चलाना कैसे है। और गवर्नमेंट ने बनाया है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू सर्विस डिलीवर किया जाएगा उनके डोर पे, और डोर पे लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो बताओ ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे? नहीं। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो डिजिटल लिटरेसी भी होना चाहिए। देखो यूपीएससी क्या पूछ रहे, 2017 का क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिजिटल लिटरेसी? डू यू थिंक इट इज द नेसेसरी एट दिस टाइम फॉर अचीविंग द टारगेट्स ऑफ द गवर्नमेंट? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो डिजिटल लिटरेसी यानी आपको जो जो चीज़ जहाँ जहाँ से आएगा ना वहीं से एक एक क्वेश्चंस बनेगा आपको, बस केवल सोचना है, माइंड को ना रिफ्लेक्ट करना है। यही हम लोग अंदर पढ़ेंगे ये सारा चीज़ जितना बोल रहे हैं हम। इसी के साथ देखो टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पर सपोज दैट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है मेक इन इंडिया, नाम सुना है ना आपने? मेक इन इंडिया बहुत बेहतरीन पॉलिसी में से एक है, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉलिसी है ये। अब देखो मेक इन इंडिया पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, जितना पॉसिबल था उतना किए। अब इन्वेस्टर कहता है कि हम आपके यहाँ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपके यहाँ दंगा कब भड़क जाए पता ही नहीं चलेगा, और सारा लोग टूट पड़ेंगे हमारे फैक्ट्री पे, क्योंकि दंगा होता है तो लूटने की कोशिश करते हैं लोग। वो ये नहीं देखते, बस खाली ये देखते कि हिंदू का दुकान है या मुस्लिम का है, बस पता होना चाहिए चांद तारा है या ओम लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब पता चला फैक्ट्री में लिखा हुआ है क्रिश्चियन का लगा हुआ है, समझ में आ रहा है? क्या बहुत अच्छा मौका है इससे। क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? धनबाद में एक जगह एक घर में गया था तो वहाँ एसी लगा हुआ था, जबकि घर में का जो सिचुएशन नहीं था कि एसी लगाया जाए। तो मैं पूछा कि ये एसी कहाँ से आया है ये? उन्होंने कहा नहीं पूछिए आप। तो मैंने कहा क्यों नहीं पूछूं? तो उन्होंने कहा कि एक दंगा हुआ था, उसी में दुकान से उसको उठाया गया था एसी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप समझ सकते हो कि उस दुकान वाले पे क्या लूट रहा होगा। ओके, देखो बाबू, रूल ऑफ लॉ नाम सुना होगा आपने। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आपको लगता है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी? नहीं। अगर यहाँ पे इंडिया में एवरीडे न्यूज़ पे ये चले कि नहीं यहाँ दंगा हो रहा है तो कोई इन्वेस्टर आएगा? आप बाज़ार जाओगे, अगर खाली आपको मिल जाए इन्फॉर्मेशन कि उस बाज़ार की तरफ दंगा हो रहा है, जाओगे तो बताओ वहाँ पे दुकानें चलेंगी? नहीं चलेगी, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ठप हो जाएगा। तो देखो पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखोगे पढ़ोगे, यूपीएससी पूछ चुकी है, 2016 में क्वेश्चन पूछी है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ फॉर द गुड गवर्नेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जितने टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं ना सब क्वेश्चन में है, सब आए हुए क्वेश्चन है। दूसरा देखो क्या है, रूल ऑफ लॉ लिख दिया आपने। अब देखिए
हमारा जो पॉपुलेशन है ना, वो मान लो एक लिटरेट है और एक क्या है, इलिटरेट है। इंडिया में लिटरेसी रेट कितनी है? 73% है। अब देखो 73% तो यहाँ आ गए, बाकी क्या हो गए, चले गए उसमें। और ये भी लिटरेट है। लिटरेट का मतलब समझ रहे हैं ना आप, पढ़ना लिखना जानता है, काबिल नहीं है। काबिल तो ग्रेजुएट भी नहीं है। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब ये बताएं कि ये सारा का सारा हम उनके लिए काम करने जा रहे हैं और उन्हीं को ना पता हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे किसी को खरीद करके एक सूट दे दो और पहनने का तरीका ना पता हो, टाई खरीद के दे दीजिए, बांधने का तरीका ना मालूम हो, तो कोई फ़ायदा है उनका? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखिए, ये पूछेगा आपसे कि स्टिल इंडिया इज फेसिंग द चैलेंजेस लाइक इलिटरेसी, आर गेटिंग, दैट इज़ द बैरियर बिफोर द गुड गवर्नेंस। ये बैरियर है कि नहीं है? तो ये देखिए पूछेगा। अब बताओ, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और ये ही पता चला कि लिटरेट लोग हैं, तो वो उनको कैसे आप दे पाओगे बेनिफिट? दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ये पूरी की पूरी जितने स्टोरी कह रहे हैं ना, सब सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, नोटिंग करना पड़ेगा। ओके, देखो अभी हमने ये देखा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज में चल रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट अगर रियल में करने की जिम्मेदारी वो एडमिनिस्ट्रेशन पर है। किस पर है? एडमिनिस्ट्रेशन पर है। तो देखो बाबू, एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं ये तो पता होगा आपको, पता है ना जी कि नहीं पता है? पता होगा आपको। एक लाइन लिख लो थोड़ा सा कहीं पर नीचे, अगर जगह है तो पहले लिख लो, एडमिनिस्ट्रेशन, 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 एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन में हम लिख रहे हैं इट इज़ फंक्शनल बॉडी of the government. The main function are: number one, implementation of policies. Number two, डिसीजन मेकिंग। देखो, इट इज़ फंक्शनल बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। द मेन फंक्शन आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी दी गई कि आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए, और पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिशियन का गुलाम बन चुका है। तो आपको लगता है कि पॉलिसी आपके लिए करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? इम्पार्शियलिटी। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चाहिए आपको? लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, वो डरे नहीं किसी से। आर गेटिंग? तो देखो क्या पूछा है, देयर आर सम वैल्यूज विच आर नेसेसरी फॉर द गुड गवर्नेंस, especially for implementing the policies. Do you think at this time it has become the necessary for maintaining the code of ethics? जीएस पेपर 4th का मटेरियल यहाँ पर ला करके इंक्लूड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो देखो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब नाम सुना है ना, ये सब ज़रूरी है इनमें। अगर मान लो वो चेहरा देख करके काम करेगा तो आपको लगता है कि पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा सही से? नहीं ना, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, जेंडर गैप आ जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा चाहिए? वो अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, है ना। तो देखो ये सब टर्मिनोलॉजी आएगा। अकाउंटेबिलिटी, क्या आएगा? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लीडरशिप, ये सब क्वालिटी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए।
पता चला गए, एक बार नेताजी डांट दिए, चुप हो गए। जैसे मैं देख रहा था यमुना नदी पे जब छठ का जो पूजा होने वाला था, तो यहाँ के एक सांसद हैं और एक ऑफिसर था, वीडियोस मैंने देखे हैं, उसमें ये कह रहा सांसद कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुम नहा सकते हो उस पानी में, बात कैसे कर रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ऑफिसर है, वो कह रहा नहीं सर हमारा ये करने का ये नहीं था। अरे भाई आप ऐसे कैसे डरोगे, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं गलत कर चुके हैं। वही दूसरा रहेगा क्या, अगर जस्ट नहाएंगे और आपको भी नहाना होगा, नहाइए आइए क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। वो डरेगा नहीं, और जिस दिन आप डर गए तो आप समझ जाओ कि उनके हाथ का क्या हो गया, आप टॉय हो गए आप। क्लियरली, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आएगा, रूल ऑफ लॉ आएगा, तभी तो इम्प्लीमेंट होगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर हो गई। अब देखो, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सेंसिटिव नहीं है, क्या नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, तो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होगा। जैसे बिहार में ये है कि शराबबंदी है, लिक्वर बैन है वहाँ पे, पर एक ऑफिसर को पता चला कि नहीं शराब बन रहा है एक मोहल्ले में, और वो मोहल्ला क्या है, वहाँ एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं और बेहद गरीब है, लेकिन ऑफिसर कह रहा है कि कोई बात नहीं, कच्चा शराब अगर पी भी लेता है, मर भी जाता है चार, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि वो सेंसिटिव नहीं है उस सोसाइटी के टुवर्ड्स में। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये क्या कहेगा आपको, यूपीएससी 2014 में पूछ चुकी है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है कि डिस्कस द सेंसिटिविटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स द वनरेबल ग्रुप्स, टुवर्ड्स द वीकर ग्रुप्स, डू यू थिंक दैट इज नेसेसरी फॉर द गुड गवर्नेंस? जितना भी काम हो अगर सब नेसेसरी है गुड गवर्नेंस के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है बाबू? डायमेंशन क्लियर हो रहा है आपका? ये सारे डायमेंशन डिस्कस करेंगे और यही सब वर्ल्ड बैंक इंक्लूड करेगा। अब देखो एक और चीज़, ये डिसीजन मेकिंग था ना, डिसीजन मेकिंग। अब देखिए गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। अब ये मान लो आप कि गवर्नमेंट, आप कहते हैं कि पार्टिसिपेशन कराना है, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, केवल पीपल में भी सब कैटेगरी का। पर आप पता चला कि कैबिनेट बनाया आपने, और कैबिनेट में पता चला कि एक भी मुस्लिम नहीं है, और मुस्लिम की परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 40% है। तो जब सरकार में ही नहीं है तो वो सरकार काम कितना करेगी उसके लिए? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपको लगता है ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट है कि नहीं है? तो आपको ये सब क्रिटिसिज्म का पॉइंट मिलेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो पार्टिसिपेशन, अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पे जा रहे हैं। अब डिसीजन आपका पता चला कि आप कास्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं और रिलीजियन बेस्ड ले रहे हैं, तो बताइए अच्छा डिसीजन कहेंगे उनको? गुड गवर्नेंस कहेंगे? नहीं। तो डिसीजन कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी न्यूट्रल, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन सबका साथ सबका विकास विल बी अचीव्ड। ये जनरल डिफिनेशन था, जनरल। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। गवर्नेंस हेडिंग प्लीज, गवर्नेंस। देखो जरा सा लिखते हैं हम लोग, उसके बाद में ज़्यादा समझा दूंगा आपको। ओके, ये डिफिनेशन आपको एग्जाम हॉल में पंचिंग की तरह सेट करना है इसको। ओके, देखो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? UNDP,
1997 में डिफिनेशन दिया था इन्होंने। कब दिया था? 1997। यहाँ पे कॉमा कर दीजिएगा। The governance is the exercise of political, economic, administrative, authority फॉर द, इसको ऐसे कर दीजिएगा आप, ऐसे, यानी सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे हम, यानी यहाँ से इसको ऐसे, ओके। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स अफेयर्स। कहाँ भाग रहे हैं? बैठो अभी। कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा, ओके। क्लास से पहले सब लोग फ्री हो जाए करो इस सब काम से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पता चला कि वरमाला के टाइम आ गया है और आपको वॉशरूम जाना है। ऐसे कई घटनाएं घटी हैं, मैंने देखे अपने आंखों से। क्लियर हो गई? देखिए, ये एक्सरसाइज किसका एक्सरसाइज है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑथोरिटी का। किसके लिए? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स। अब देखो, स्टेट कौन है यहाँ पर? इंडिया है। आर्गेटिव में इंडिया में क्या क्या? लैंड भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है और सॉवरेनिटी भी है। तो यहाँ पर स्टेट क्लियर है ना बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ। अब देखो, इसका ये मान लेते हैं, यानी अभी इसका डेफिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है, ओके। यहाँ से एक और शुरू करो, इसी का एक सेकेंड पार्ट है ना। चले हम लोग आगे। आप लोग नोट करते चलिएगा बाबू, नोट करते चलना है। लिखते हैं, It consists mechanism government organs institutions and other authorities, एक मिनट, सॉरी, other authorities through which needs of the people are fulfilled
नीड्स ऑफ द पीपल आर फुलफिल्ड। नीड्स ऑफ द पीपल आर फुलफिल्ड। ये कौन कह रहा है? यूएनडीपी कह रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब जरा सा हम लोग आते हैं, चले आज अगला पॉइंट में वर्ल्ड बैंक चलते हैं। जरा गवर्नेंस हेडिंग डाल देते हैं जरा। गवर्नेंस in the year of 1993, the World Bank defined the governance it is the medium through which the management of the estate practiced क्या किया जाता है? प्रैक्टिस्ड किया जाता है। प्रैक्टिस्ड and it includes various stakeholders का मतलब होता है कि जिसका इस देश में हित है, इंटरेस्ट है, जो भी इस देश में रह रहा है वो सबको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन इस कंट्री से है कि नहीं है, और उसके नीड्स पूरी फुलफिल कैसे होंगे, वो सब के सब स्टेक होल्डर हैं। हम भी स्टेक होल्डर है, स्टूडेंट भी है, फार्मर्स भी है, एनजीओ भी है, गवर्नमेंट भी है, सब स्टेक होल्डर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? तो देखो मैंने 3 डिफिनेशन लिखी है, एक यूएनडीपी, एक वर्ल्ड बैंक, एक जनरल डिफिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आपको एक जनरल डिफिनेशन और एक वर्ल्ड बैंक या यूएनडीपी का पुट करना होगा आपको अपने आंसर में। ऐसा नहीं कि अगर आपका टाइम कम है, वर्ड लिमिट कम है, तो जनरल डिफिनेशन को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और यूएनडीपी के डिफिनेशन को एडॉप्ट कर लेंगे। सबसे बेस्ट डिफिनेशन किसका है? यूएनडीपी का है। तो आप नोट कर लेना कि अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा है, जैसे अगर लिखना है इससे ही, तो उसमें वर्ड लिमिट्स का काफ़ी आपके पास रहता है स्कोप। यू कैन पुट द बोथ डिफिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ यू हैव द लैक ऑफ वर्ड्स and limitation, then at that time you can skip one of the definitions. Clearly? चलें आगे, जाना चाह रहे हो आप? हो गया क्लास? ओके जाओ। और किन्हीं को जाना है? नहीं, चलें आगे। कितना टाइम हो गया? घड़ी नहीं पहन के आया हूँ। 6:20 हो गए। आप लोगों को भी सिक्योरिटी केस हुए क्या? हाँ चलो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जरा स्टेक होल्डर्स आया ना, अब हेडिंग जरा डालो स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर, ये अजीब सा वर्ड आता है ये। स्टेक होल्डर्स, देखो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, इसको आप ऐसे मान लीजिए। नेशनल लेवल यहाँ पे लिखना हेडिंग,
नेशनल लेवल। स्टेट सिविल सोसाइटी मार्केट है, ये मार्केट है ये। मार्केट देखिए स्टेट है तो स्टेट में कई ऑर्गन्स हैं, है ना, कई मशीनरी हैं, ये तो आपको पता होगा। केवल स्टेट एक टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह से मार्केट है, मार्केट में भी कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नाम सुना होगा इकोनॉमिक वगैरह में, सुना है ना, तो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और कौन होगा इसमें मार्केट में? कंज्यूमर है, कंज्यूमर लिखो, कंज्यूमर, यही तो मेन है। यहां पे आ जाइएगा जरा, यहां पे लिखना एनजीओ, सॉरी यार, एनजीओ एक होता है पीपल पार्टिसिपेशन, मीडिया, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप समझते हैं, जैसे फार्मर का, स्टूडेंट यूनियन, है ना, ये सब है। फोन कहाँ से? मेरी आदत बुरी है, मैं बीच में पूछ लेता हूँ, हालांकि पूछना नहीं चाहिए। क्या हुआ? ऐसा नहीं, मैं शक की इंसान नहीं हूँ। स्टेट में जरा सा करते आते हैं, जरा स्टेट में देख लेते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। नंबर 1 इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी, कॉमा बॉडी। जैसे यूपीएससी का काम क्या है? अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्रूट करना। पता चला यही करप्ट हो जाए तो बताओ गुड गवर्नेंस आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये सारे के सारे क्या है? इन्वॉल्व हैं। और क्या है? मशीनरी है ना, मैकेनिज्म। राइटिंग पढ़ पा रहे हो ना आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब स्टेक होल्डर हैं, ओके। अब स्टेक होल्डर अगर है ना, तो इसका मतलब है कि यूपीएससी उस स्टेक होल्डर के उस पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगी आपसे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है कि गवर्नेंस का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जरा सा चलते हैं अगला स्टेप में। चलें आगे? गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1,
Accountability. Number 2, rule of law. Number 3, people's participation. People participation. Administrative efficiency. Administrative efficiency and effectiveness. Administrative efficiency and effectiveness. Okay. People's awareness. कितना भी कर लीजिए, अगर पीपल ही अवेयर नहीं है ना, जैसे अगर कितना भी टीचर समझा ले, अगर स्टूडेंट ही अगर ठीक नहीं है तो कोई बचा सकता है उसको? कोई नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गवर्नमेंट तो स्टेक होल्डर्स हो सकती है। हाँ, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर का मतलब होता है ना कि गुड गवर्नेंस में कौन कौन जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो मोदी जी अगर अच्छा नहीं काम करेंगे तो उनको वोट मिलेगा 24 में, तो वो क्या चाहेंगे कि हम काम करें तो 5 साल और प्राइम मिनिस्टर। भारत जोड़ो यात्रा शौक से थोड़ी हो रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? वो टी शर्ट शौकिया थोड़ी पहनी जा रही है, या दाढ़ी जो बढ़ गई है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सबके पीछे एक ही रीजन है। वो क्या है बाबू? वो है सत्ता, पावर। और आप भी यहाँ पे जो सामने बैठे हुए हैं, वो उसका क्या रीजन है? वो भी पावर है। वो आपका अपना कैपेसिटी है, राहुल गांधी का अपना कैपेसिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर वी आर स्टेक होल्डर्स, लाइक पीपल आर स्टेक होल्डर, तो जो टर्म अकाउंटेबिलिटी है उससे कैसे डिफाइन करें? अभी तो हम लोग डिफाइन ही कहाँ कर रहे हैं, अभी तो पीपल्स के टर्म। पीपल, देखो पीपल अकाउंटेबल हम भी हैं। जैसे वोटिंग के टाइम में कास्ट ढूंढ लिया तो हम अकाउंटेबल नहीं हो गए। हमने क्या किया? कास्ट को वोट किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं किया। हम भी अकाउंटेबल हैं सिस्टम के टुवर्ड्स, और सिस्टम अकाउंटेबल है हमारे टुवर्ड्स। तो अकाउंटेबिलिटी विल बी फिक्स्ड एट एवरी लेवल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो व्हेन वी विल ट्राई टू डिफाइन इट, देन वी विल डिस्कस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट वी आर गोइंग टू हाईलाइट ओनली। सो डोंट वरी, एवरीथिंग जो भी अगर लिख रहे हैं सबका डिफिनेशन है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इसको ब्लड में आना चाहिए। आफ्टर द 10 days आई विल ट्राई टू चेक योर ब्लड। है ना? निकलना चाहिए गवर्नेंस उससे। अगर नहीं निकला तो समझो फिर मेरी कहीं ना कहीं कमियां हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो नेक्स्ट जरा से लिखो। गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ एस एक्टिवनेस। गवर्नमेंट एक्टिव कितनी है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे उस लड़की को 13 किलोमीटर तक वहाँ तक घसीट करके लेके गया गाड़ी, और पुलिस वैन का तो गुजरी भी है 13 किलोमीटर, वो भी नेशनल कैपिटल में। इमेजिनेशन करते हैं आप कि इंडिया में सिक्योरिटी लेवल कितना लो ग्रेड पे है। ये भगवान भरोसे देश चल रहा है, यकीन मानो। समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? डर है ही नहीं है क्रिमिनल्स में। और अब कितना दिन ट्रायल चलेगा? और पता है सब बड़े घर के ही औलाद होंगे, वो गाड़ी से अगर घूम रहे हैं फर्स्ट नाइट में, अगर उस ईयर का फर्स्ट अगर डे हो, अगर घूम रहे हैं तो समझ सकते हो आप कि क्या सिचुएशन होगा। अब तक तो जस्टिस मिल जाना चाहिए था। डू एग्री और नॉट? देखो एक्टिवनेस ये कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये बिल्कुल एक तरह से लिटरल फॉर्म है इसका। लिटरल फॉर्म है ये। क्या है?
लिटरल फॉर्म है ये। मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा सा यूएनडीपी क्या फिक्स किया है इसके कैरेक्टरिस्टिक को, वो जरा देखते हैं। ये क्या है? जनरल है, एक है यूएनडीपी। चलें आगे। पेज खत्म हो गया क्या? कोई बात नहीं भाई। According to UNDP देखो क्या क्या इन्होंने डिमांड किया है, यानी क्या क्या इन्होंने हाईलाइट किया है, वो ये है। एक तो पहला इन्होंने क्या कहा है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सिस्टम में। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पीपल ओरिएंटेड सिस्टम होना चाहिए। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। इफेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑर्गन्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे समझना एक चीज़ को, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ा होगा जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू। अभी देखो बिहार में पेपर हुआ है बीपीएससी 3 दिन पहले जीएस पेपर में, उससे पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू, जो हम क्लास में पढ़ा है। और बोलते हैं कि क्लास से अगर बाहर आ गया तो बताना मुझे। मेरी बात 25 स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ पर्सनल गाइडेंस के थ्रू, और मैंने कहा था कि नाइट में कि ये कल आ रहा है तो आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और वो पूछा है, तीन पॉल क्वेश्चन थे और 38 मार्क्स के, यानी 114 मार्क्स का पूछा था पॉलिटी। और गेस था, जैसे बच्चों का लड़ता है ना गेस 10-12 में, उस तरीके से। क्लियरली देखो यहाँ पर ऑर्गन्स, इफेक्टिव ऑर्गन्स का मतलब होता है अगर पता चला कि लेजिस्लेचर जो है ना वो एपथी है, यानी वो उदासीन दिख रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो जुडिशरी को क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, ताकि बैलेंस क्रिएट करें। आर यू गेटिंग? जैसे हल्द्वानी में घरों पर बुलडोजर चलने वाला था, ये तो पता होगा, न्यूज़ चल रहा होगा। ये एक्शन एग्जीक्यूटिव लेती है ना, एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। पर देखो ठंड में वो लोग जाते कहाँ? इसका अल्टरनेटिव कोई आइडियाज़ दिया ही नहीं गवर्नमेंट, कोई ऑप्शंस क्रिएट किया ही नहीं कि उनको शिफ्ट कहाँ करोगे। केवल तोड़ देना तो बहुत आसान है, उनको ला करके दोगे कहाँ, रखोगे कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव होकर के क्या कर दिया? उस पर स्टे लगा दिया। यही है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव ऑर्गन्स बोला जाता है इसको, कि अगर एक गलत कर रहा ना तो दूसरा क्या हो जाए? वो एक्टिव हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जितने भी इंसिडेंट होते हैं ना वो सब गुड गवर्नेंस में इंक्लूड करना आप, अगर कोई जजमेंट वगैरह ऐसा आता है तो। ओके, नेक्स्ट जरा सा देखेंगे। पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल करना है, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल
एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। दुनिया में एक ओनली इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पुलिस से पीपल को डर लगता है। दुनिया में एक इवन कि जिसको सबसे आप घटिया कंट्री मानते हो पाकिस्तान में ना, वहाँ भी पीपल नहीं डरते हैं पुलिस से। और हमारे के यहाँ क्या है, पुलिस से डर लगती है। किसको? पीपल को। कॉमन पीपल डरती है। अब बताओ, पुलिस हमारे लिए है और हम ही उससे डर रहे हैं। दुनिया में ओनली कंट्री इंडिया, आपको मालूम होना चाहिए बात। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये क्या कर रहा है? एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। हम क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी वाले को, गांव में लोग कहते हैं सिपाही है, नॉर्मल है, गार्ड है, करा सर आप बैठिए ना, हम खड़े रहते हैं। उनका काम है खड़ा रहना, आपका काम बैठना है। तो आप दे रहे हैं चेयर उनको, किनको? होम गार्ड को, और कह रहे सर आप बैठिए, हम खड़े रहते। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? ब्रिटिशों ने इतना मार मारा है ना हमारे पूर्वजों को कि वो ब्लड में आ गया डर, और वो डर हमारे भी ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है कि वो डर जा ही नहीं रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखो 7 है, कितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं आप, क्योंकि मॉडर्न एज में अगर टेक्नोलॉजी से आप डिस्कनेक्ट हैं तो आप इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। किसके लिए बारे में? गुड गवर्नेंस के बारे में। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करो। क्या हुआ? कितने पॉइंट हो गए? 7 ना, 8 ना, 8 कहाँ से हो गए? ओके 8 हो गए। ओके, एक जो है ना लोग अपने से ऐड करते हैं कि एक और होना चाहिए, वो है स्ट्रेटेजिक विजन। लिखिए, द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक विजन। इसको सबसे लास्ट में लिखिएगा। ये यूएनडीपी का नहीं है, ये अलग से लोगों ने ऐड किया है स्ट्रेटेजिक विजन, क्योंकि स्ट्रेटेजिक विजन में तो सब कुछ आ जाता है। ओके, स्ट्रेटेजिक विजन। अब 1 बाय 1 क्या करेंगे? सबको डिफाइन करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता क्या है, और एग्जाम्पल देना है। एक लाइन लिखना है और उसका एग्जाम्पल देखना जा करके इसका श्रुति शर्मा की कॉपी जितना टॉप 10 में है ना, उन सब की कॉपी को देखना। लाइन लिखी जा रही है, एक एग्जाम्पल पुट, बस आपको भी वही फॉर्मूला फॉलो करना है। क्लियर होगी कि नहीं होगी? जैसे कोई बात कहें तो प्रूफ के लिए क्या आपके पास है? लाइक एग्जाम्पल है ना, पुट करना है। तो चलें हम लोग, अब ज़रा टाइम बता दो कितना हो गया? 6:40 है ना। आप लोग रेडी हैं ना आगे? हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चलेंगे? लेट हो रहा है आपका? नहीं होगा तो फिर टाइम हम लोग थोड़ा सा पीछे कर लेंगे उसको, जैसे 5 से है ना, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा रोक देते हैं, डिस्कस कर लेता हूँ मैम से कि टाइम का क्या कुछ है। ओके, कल से हम यहीं से आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं करना है, मेंटली बस फ्रेश होकर के आना है 2 घंटा। बहुत समझ में नहीं आ रही है? हमें ओनली 2 आवर्स चाहिए, कोई बोधरेशन नहीं, कोई मटेरियल नहीं, जाके मांगने मत लगना वहाँ जाके मटेरियल चाहिए। इसके लिए मटेरियल नहीं बाबू, एस्थेटिक सेक्शन के लिए मटेरियल पढ़ो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको माइंड में सेट करना है, और जितना कॉपी में लिख रहे हैं वो ब्लड में आ जाना चाहिए। अगर ब्लड में नहीं आया तो आप समझ जाओ मेंस नहीं लिख पाओगे। मेंस में पता है, आप इतना पढ़ के जाइए, नहीं यूज होता है। हम इतना पॉलिटी पढ़ते, अगर मुझे बैठा दोगे इतना पता होता है, लेकिन नहीं लिख पाते हैं। क्यों? वही चीज़ पढ़ो जो इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर पाओ आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हम वही चीज़ देंगे आपको। आर यू गेटिंग? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू। अब चाहे पॉलिटी लूँ चाहे कुछ भी लूँ, मेरी क्लास अब कंटिन्यू ही रहेगी आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।